Thank you so much, ma'am. It's a great privilege to welcome our esteemed guest speaker for today's session, Advocate Kushi Sharma, ma'am. Advocate Kushi Sharma, ma'am, is a practicing advocate specializing in cybercrime, digital payment and UPI fraud, and IT Act matters, with strong courtroom experience across the Delhi High Court, district, and family courts. We are honored to have her with us to decode online financial fraud and how the law protects victims. Please join me in extending a warm welcome to Advocate Kushi Sharma, ma'am. Without further ado, I would like to hand over the mic to you, ma'am. Thank you so much. First of all, I would like to thank the Naksh Foundation and the Project Cybershield for inviting me to this webinar, for making me a part of this. Thank you. Today, we are not only going to discuss about financial cybersecurity, but we are also going to learn about legal rights, legal responsibilities, and simple precautions that can save us from becoming a victim of this crime. So before we begin, I would like to ask a few questions with you all. So how many of you are there who use UPI or online payment method once every day, at least once every day? Or how many of you are there who use online shopping websites frequently? Ma'am, excuse me, please. Yes, yes, sir. Ma'am, we kindly request you to switch on your camera to make the session interactive. Okay, sure. Thank you so much. Thank you, ma'am. So firstly, I want to know, because I want to know that how many of people among us are there. I believe majorly of all of us use UPI or online payment method like once every day, at least once every day, and that has become a normal practice for all of us. So हम सब में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, या मेजर हम सब में से ऐसा कोई जरूर होगा जिसने ऐसी कोई कॉल फेस करी हो जिसमें हमसे ये कहा गया हो दैट ma'am, your account will be blocked if you do not update or verify your KYC immediately. Or a call like that, ma'am, there is a job opening for you and your profile is suitable for that job opening, right? We all have faced such kind of calls majorly, right? Ma'am, excuse me, I would like to add something. 1 year back, there was a digital arrest with my niece. So Okay. what happened? The call, my niece received a call, and it was a video call, and somehow she was walking, and she just tapped that button, and that person was saying that you ordered something, you placed some order, and we have found that some drugs are coming, and we want to just ask some question. Then she thought like we are ordering lots of things through online. So she told yes, but she could not recall what kind of item she just placed that time. Then they started just asking that what happened with you, why have you just went through this drug item and all. Then she thought that why they are asking about the drug and all. Then immediately she got panic, and she actually her bade papa means uncle, like he is a police commissioner in Delhi, and she immediately contacted with her and asked about that it is happening. Then he said that immediately you just close the thing, and she somehow she shared each and every details with that person, that which card she used for purchasing and all. Then it was a great, and she saved herself due to her uncle only. But yes, it happened with her, and for I think 6 months she was in trauma, and she could not come out from this trauma. So it happened really. Yes, that's what I'm discussing. Like this is such a thing that one of us must have faced it, or in fact all of us must have heard. Like हमने किसी ना किसी से जरूर सुना होगा that ऐसा कुछ हुआ है, मे बी हमारे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, किसी ना किसी के साथ, या तो उन्होंने ऐसी कोई कॉल फेस करी है,
इवन इफ यू हैव इग्नोर्ड इट, इवन इफ आपने स्मार्टली उस कॉल को इग्नोर कर दिया, बट हाँ हमने ये जरूर देखा है कि ऐसी कॉल्स आती हैं हमारे पास. सो दिस इज बिकॉज इन टूडेज रियलिटी साइबर क्रिमिनल्स आज की डेट में कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश नहीं कर रहे. व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू हैक इज अवर माइंड्स. वो हमारे माइंड्स के साथ खेलते हैं, हमारे माइंड्स को ट्रिक करते हैं अपने मोटिव को पूरा करने के. दे आर सिटिंग विद देयर स्मार्टफोन्स एंड ओनली वेटिंग फॉर वन थिंग, one small mistake, just one small mistake that we do, and that will give them everything voluntarily. So basically hackers हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. वो हमारे डिवाइसेस से कुछ भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते. So before we move forward with the topic, can someone tell me कि why in today's day cyber crime इतना ज्यादा बढ़ गया that we have to specially focus on it. In fact, as per the data, जो total amount of crime हो रहा है हमारी कंट्री में, उसमें 60 to 75% cyber crimes हैं. So can someone tell me that why this is happening, that why especially cyber crime is increasing at this level? Good evening, ma'am. Yes, good I evening. believe everything is online nowadays, and everyone, for example, me, I don't have cash at home. Whatever payment I do everything from GPay, everything, whatever it is. If there is an online shopping, I'm going to a vendor. So if I'm using this as a source of giving the money, so there is a chance that the other one people want to get it through online medium. Yes, that is a major reason कि अब सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है. एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, मनी इज डिजिटलाइज, डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटलाइज. सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है एज द टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, एज वी आर एडवांसिंग. एंड सेकेंड मेजर रीजन इज लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है. ओके, टेक्नोलॉजी इज अ न्यू थिंग फॉर अस. जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं, जैसे जैसे नए सिस्टम्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, वी डोंट नो हाउ दे वर्क, वी डोंट नो हाउ दे प्रोसेस. एंड इवन इफ वी नो, तब भी हम इसमें फंस जाते हैं. इट्स नॉट जस्ट that someone who is illiterate or someone who don't know anything about the technology or someone who don't know anything about the digital things सिर्फ वही फंस रहा है. नहीं, हम वेल एजुकेटेड पीपल भी फंसते हैं. इनफैक्ट सबसे ज्यादा तो वही फंसते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स, सीईओज, इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं जिनमें करोड़ ऑफ रुपीस जाता है. मतलब उनका करोड़ ऑफ रुपीस उनके अकाउंट से चला जाता है. सो जिनके पास इतने हैं पैसे must be sitting on a good position and must be well knowledge about everything. Even then वो भी इन चीजों में फंसते हैं. उसका कारण बिकॉज जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ना, उनको एक चीज पता होती है, हाउ टू ट्रिक योर माइंड. इफ समवन नोज दैट हाउ दे कैन क्रिएट ईदर फियर, अर्जेंसी और ग्रीड in your mind within just 30 seconds, they know how to make you transfer everything you have voluntarily. आप सब कुछ अपनी मर्जी से उन्हें बता दोगे just because they will create a panic in your mind. आज की डेट में वैसे भी साइबर क्राइम इस तरीके से नहीं होता जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते थे. और आज भी कई सारी मूवीज और सीरीज में हम देखते हैं कि somebody sitting in a क्लोज फैक्ट्री, वो सारे सिस्टम्स को हैक कर रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू ट्रेस एवरीथिंग अबाउट द विक्टिम. हाँ, अब भी उन मेथड्स को यूज करा जाता है, बट दैट इज नॉट द मेजर पार्ट. मेजर पार्ट क्या है कि वो कुछ भी हैक नहीं करते. व्हाट दे डू इज दे ट्रिक यू, दे ट्रिक योर माइंड. वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप खुद ब खुद उन्हें सारी चीजें बता देते हो. वो इस तरीके की अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे या फिर इस तरीके का डर आपके मन में बिठा देंगे. अब हम लोग क्यों फंसते हैं इसमें? बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है. लाइक सामने वाला जो चीज कह रहा है वो सच है या झूठ है. हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी चीजें
जो वो लोग बोलते हैं, जो वो लोग कॉल करते हैं, जो वो लोग इस तरीके से बताते हैं। अब जब फर्स्ट केस हुआ या सेकंड केस हुआ, उस वक्त पे किसी को भी इन चीजों के बारे में नहीं पता कि इस तरीके के कॉल्स जो हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारी डिटेल्स हैं, ओटीपीज है, सीवीवीज है, जो हमारी प्राइवेट डिटेल्स हैं, वो सारी नहीं बतानी किसी को, ये हमें नहीं पता था। किसी को ये नहीं बताया गया था कि इन सारी चीजों को शेयर नहीं करना। दैट्स व्हाई दिस थिंग हैपेंड। और अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें, जो इस चीज में ही सारी गलती कर जाते हैं, जिनको ये चीज नहीं पता कि कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हमारे को शेयर नहीं करनी। सो मेजरली आज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्यों सबसे ज्यादा विमेन्स को फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है दैट मोर देन एनी पर्सन ना, विमेन्स को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी कैसी के बारे में, क्या सारी डिटेल, कि हाउ टू प्रिवेंट दीज ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड एवरीथिंग। जो ये इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, यूपीआई फ्रॉड्स, केवाईसी फ्रॉड्स, इनके बारे में सबसे ज्यादा एक विमेन को नॉलेज होनी चाहिए। वाई? कैन एनीबडी टेल मी कि क्यों हम विमेन्स को ही सबसे ज्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी चाहिए? ओके, लेट मी शेयर इट विद यू। सो जो मेरा ओपिनियन है, दैट even if you are a homemaker, even if you are a entrepreneur, even if you are retired, you are a student, you are a teacher or whatever, you are a working professional, in many households, जो women's हैं, they are managing the majorly the household finances, बच्चों की स्कूल की फीस, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी चीजें हैं वो विमेन्स के हाथ में होती है, वो विमेन्स हैंडल करती है मेजरली इंडिपेंडेंटली। बहुत सी विमेन्स पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, जितनी भी सारा फाइनेंस होता है घर का, बच्चों की स्कूल फीस जानी है, वो सारी चीजें विमेन्स इंडिपेंडेंटली हैंडल करती। फर्स्ट दिस रीजन। सेकंड, बिकॉज हम सबसे जल्दी इमोशन से ट्रिगर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली साइबर क्रिमिनल्स डेलिबरेटली विमेन्स को टारगेट करते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू यूज इमोशंस एज वेपन। जब भी कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल करेगा, वुमेन्स को टारगेट करने का सबसे इजी तरीका है दैट दे विल से समथिंग लाइक your child has met with an accident, or your brother has met with an accident, someone in your family, or your parcel has been stopped due to any reason, or your bank account will be blocked immediately. Now what will you do? You will be panicked. So what actually they are trying to do here is to make you panic. यहाँ पे पैनिक करने का सबसे पहला रीजन, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। नोबडी इज, इन फैक्ट आई बिलीव मेजर पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो देयर इज वन सिंपल गोल्डन रूल। वेन एवर कोई भी आपसे कह रहा है कुछ भी करने के लिए, इमीडिएटली कोई भी आपको क्विक एक्शंस लेने के लिए कह रहा है कि आप अभी इस चीज को करो, ये अर्जेंट है, इसको अभी नहीं करोगे तो नहीं होगा, डोंट, नेवर डू दैट। Whenever someone is asking you to do anything immediately, whenever someone is asking you to act immediately, stop there, stop right there. पहले रुको। सबसे पहला सबसे इजीएस्ट, जो सबसे जल्दी आपके साइबर क्राइम को होने से रोकेगा, दैट इज take 10 seconds and think about it, what the person is asking you to do, what the person is saying, कि वो क्या कह रहा है। हम सबसे ज्यादा गलत डिसीजंस जल्दबाजी में लेते हैं, इमोशंस में लेते हैं, और इसी चीज का तो सारे क्रिमिनल्स, फ्रॉडस्टर्स फायदा उठाते हैं। राइट, गिव इट अ सेकेंड थॉट, लर्न टू से नो। राइट, एग्जैक्टली। हमें सबसे पहले अपने माइंड को काम रखना है। अगर कोई भी आके आपसे कुछ भी ऐसे अर्जेंट सी सिचुएशन आपके सामने लाके रख देता है, जस्ट काम योर माइंड,
डोंट डू एनीथिंग, डोंट टेक एनी एक्शन। शांत होके एक बार रिपीट करो अपने दिमाग में वो क्या कह रहा है, एंड देन एवरीथिंग विल बी लाइक क्रिस्टल क्लियर बिफोर यू कि एक्चुअली हो क्या रहा है। in legal terms this is called as cheating by deception। जो ये फ्रॉडस्टर्स करते हैं, दिस इज कॉल्ड चीटिंग बाय डिसेप्शन। व्हाट दिस मीन्स, द चीटिंग बाय डिसेप्शन बेसिकली मीन्स कि आपको कोई भी कुछ भी झूठ बोल के या झूठे फैक्ट्स बता के आपसे कुछ करवाता है, कोई भी एक्शन आपसे करवाता है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी या मनी आपसे ले लेता है, ट्रांसफर करवा लेता है, बट वो आपको झूठ बोल के करवा रहा है, वो ट्रू फैक्ट्स बता के नहीं करवा रहा। दैट इज चीटिंग बाय डिसेप्शन and that is punishable under law. But my personal opinion is it's better to take precautions because it is easier than litigation. If हमारे साथ अगर कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम इस फ्रॉड में फंस जाते हैं, देन हाँ, हमारे पास लॉज हैं ऐसे जो कि इनको पनिश करेंगे, आपके जो आपका लॉस हुआ है उसको भी रिकवर करवाएंगे, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम लिटिगेशन। इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट इट। एंड इन फैक्ट जो ये मनी ट्रांसफर और जो मनी फ्रॉड्स होते हैं ना, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मनी की रिकवरी। वी विल डिस्कस इट बिकॉज मनी रिकवरी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज इन लोगों का पूरा एक चेन बंधा होता है। ये लोग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते चले जाते हैं। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट, वी ऑल नो दैट, आई बिलीव हम सबको ये चीज पता ही है। आपका ओटीपी, आपका सीवीवी, आपकी डिजिटल अकाउंट्स की डिटेल्स, आपकी इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स, ये सब भी आपकी प्रिवेसी का ही पार्ट है। ये सारी डिटेल्स आर कॉन्फिडेंशियल टू यू। ये सारी डिटेल्स प्राइवेट हैं, आप तक ही रहनी चाहिए। नोबडी हैज द राइट टू नो दिस, कोई भी नहीं, नॉट इवन योर फैमिली मेंबर्स, टोटली पर्सनल टू यू। आप चाहो तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इन डिटेल्स को देने से मना कर सकते हो फॉर द सिक्योरिटी रीजन। क्यों? क्योंकि यही डिटेल्स होती हैं जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। ये डिटेल्स यूज करके सबसे ज्यादा मिसयूज हो सकता है, सबसे ज्यादा आपका लॉस हो सकता है। So first we will discuss the one of the most common fraud that happens around us, that is UPI fraud। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी आप सबसे, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट अ QR कोड helps you or assists you to receive money? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि QR कोड से पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, QR कोड स्कैन करने से पैसे अकाउंट में आएंगे? प्लीज आंसर इट ऑनेस्ट। गुड। Okay, it's good if you all know that this is not the way, like QR कोड से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। ओके, सम पीपल आर देयर जिनको ऐसा लगता है कि QR कोड स्कैन करने से आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस इज मेजर। ओके, फर्स्टली QR कोड स्कैन करने से कभी भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज तक भी फ्रॉडस्टर्स करोड़ ऑफ रुपीस कमा रहे हैं। करोड़ ऑफ रुपीस दे आर अर्निंग एवरी ईयर, एवरी मंथ। व्हाई? बिकॉज स्टिल बहुत से लोगों को ये अभी नहीं पता। मेनी पीपल, okay, majorly we can assume the people who are illiterate, they don't know how these things work, how digital payments work. We are literate, but even there sometimes हम ये गलती कर देते हैं। जिनको पता है, जो
वेल एजुकेटेड लोग हैं उनमें भी कई बार बहुत से लोग होते हैं, समटाइम्स ओल्ड एज पीपल, जो कि हमारे पेरेंट्स हो गए, वो हमारे से पहले की जनरेशन के जितने भी लोग हैं, हमारे पेरेंट्स एंड हमारे रिलेटिव्स, उनमें कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं होती नॉलेज, नहीं उन्हें पता होता। उन लोगों को बिकॉज इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से वो फंसते हैं। बिकॉज पीपल थिंक कि क्यूआर कोड स्कैन करने से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बिकॉज दे डोंट नो दैट क्यूआर कोड स्कैन सिर्फ तभी होता है जब पेमेंट आपके अकाउंट से जा रही है, आती नहीं है कभी भी। क्यूआर कोड स्कैन करके कभी भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। क्यूआर कोड स्कैन करना एंड देन आपकी यूपीआई पिन आप अगर एंटर कर रहे हो, दैट मीन्स आपके अकाउंट से पैसा जाने वाला है, आएगा कुछ नहीं। सो द मोमेंट you enter your UPI pin and scan a QR code, you are giving money to someone else. Yes, QR to make payment. QR are scanned to make payments, not to receive payments. आपको कभी भी कोई भी आपका कस्टमर भी ये कहेगा कि इस क्यूआर को स्कैन कर लो, आपकी पेमेंट आपके पास आ जाएगी, नहीं आएगी। So when these thing happens, you have to take quick actions. However, अगर कोई पर्सन आपके साथ इस तरीके के फ्रॉड करता है, ये आईटी एक्ट के अंदर भी कवर्ड है, साइबर क्राइम के अंदर भी कवर्ड है, क्रिमिनल लॉज के अंदर भी कवर्ड है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक। Yes, somebody wants to speak. Sorry to interrupt you. Are you actually presenting a PPT? No, I am keeping it interactive. I am talking here with everyone because I want to discuss it. I don't want to give any lecture to you today, to be very honest. That's why I am continuously asking questions. I am discussing things because I am not here to teach you anything, but I want to talk about it so that we can know कि हम सब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, and we can actually सबके एक्सपीरियंसेस हम लोग जानेंगे कि सबने क्या फेस करा है, तो हमें उससे उतना ही ज्यादा चीजें पता लगेंगी दैट क्या चीजें हो जाती हैं, कितने अलग तरीके के वो लोग ट्रिक्स यूज करते हैं आपको स्कैम करने के लिए। आई एम कीपिंग इट अ काइंड ऑफ इंटरेक्टिव सेक्शन इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट अ like a normal session, a lecturized one. Okay, so what I was telling you about that, yes, हमारे लॉज के अंडर ये सारी चीजें कवर्ड हैं, बट आपके पैसे अगर आप रिकवर करवाना चाहते हो, इट इज बेटर टू टेक क्विक एक्शंस बिकॉज दीज थिंग्स गो वेरी फास्ट, मूव वेरी फास्ट। आपके अकाउंट से पैसा चला गया, जिस अकाउंट में गया उस अकाउंट में नहीं रुकेगा, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में चला जाता है। Similarly happens the OTP and KYC frauds. OTP and KYC frauds हमारे सबसे ज्यादा, like they are the oldest but they still work. OTP and KYC frauds मेजरली काम करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपकी माइंड ट्रिक्स यूज होती हैं एंड यहाँ पे पैनिक या अर्जेंसी क्रिएट करी जाती है। आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जहां पे कि आपका ब्रेन 2 मिनट के लिए इट स्टॉप्स वर्किंग एंड यू जस्ट डू व्हाट द अदर पर्सन इज टेलिंग यू टू डू। आप ओटीपी दे देते हो, आप डिटेल्स दे देते हो, आप सब कुछ दे देते हो। सो हमें कभी भी ऐसे पैनिक क्रिएट करने वाले कॉल्स आते हैं, लाइक जो मैंने आपसे बिल्कुल बिगनिंग में क्वेश्चन किया था कि हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है, या आपका कोई पार्सल है वो आपका स्टॉप हो गया है बिकॉज उसमें Yes, my friend had got a fox call from police that her daughter had been arrested. Yes, हमें ऐसे पैनिक कॉल्स आते हैं, ऐसे एकदम से ना ऐसी सिचुएशन वाले कॉल्स आते हैं कि हम एकदम से ऐसे टेंशन में आ जाए कि अरे अब क्या करूं, ये क्या हो गया, राइट? ऐसे कॉल्स आते हैं। सो फर्स्टली जस्ट काम डाउन बिकॉज हम ऐसी डिटेल्स कभी भी किसी को नहीं दे सकते, स्पेशली व्हेन वी डोंट नो इफ जो कॉलर है वो जेन्युइन है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल
हम कई बार बिलीव कर लेते हैं कि कॉलर जेन्युइन है, बट द थिंग इज, इफ द कॉलर इज जेन्युइन, इवन आवर बैंक्स रिपीटेडली टेल्स अस कि आप अपना कभी भी ओटीपी, सीवीवी, कार्ड, एटीएम पिन या फिर इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर मत करो. सो इफ जो पर्सन है जो आपको कॉल कर रहा है, एंड द पर्सन हु इज ट्राइंग टू impersonate someone else, he is trying to impersonate a police officer, he is trying to impersonate a bank official, he is trying to impersonate everyone or anyone from your family, they will never ask you for your crucial or confidential details. Sometimes जब हमें वो ऐसे पैनिक कॉल्स आते हैं ना, उन्हें हमारे बारे में पता होता है, उन्हें हमारे कुछ डिटेल्स पता होती है, हमारे नाम पता होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के नाम पता होते हैं, हमारी अकाउंट डिटेल्स पता होती हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स पता होती है, तो हमें भी एकदम से लगता है कि हाँ शायद जेन्युइन कॉलर है, इसको इतना सब कुछ कैसे पता है. वो लोग पूरी रिसर्च करके बैठे होते हैं हमारे ऊपर, हमारे फैमिली में कितने लोग हैं, हमारे फैमिली में किस किस का क्या नाम है, किसका क्या रिलेशन है हमसे, हमारी अकाउंट डिटेल्स क्या होती हैं, एवरीथिंग वो पूरी रिसर्च करके बैठे होते हैं. उनके पास एक पूरा लिस्ट तैयार होता है और पूरा एक डेटा चार्ट उनके सामने रखा होता है, स्क्रिप्ट रेडी होती है, क्या बोलना है, पूरा उन्हें पता है क्या बोलना है. उन्हें ये भी पता है कि आप जब कुछ जवाब दोगे तो उन्हें क्या बताना है. आप उन्हें आपकी बातों को काउंटर करना भी आता है, ठीक है, दे कैन, वो आपकी बातों को काउंटर कर लेंगे, वो आपको आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर देंगे. दे विल ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू मेक यू बिलीव दैट यस दे आर अ जेन्युइन कॉलर, बट हाउ विल यू फिगर आउट कि वो जेन्युइन कॉलर नहीं है. Simplest and the first and the foremost thing, the moment that person is asking you for your confidential details is the moment you end that conversation. मैं ना एक सिंपल सी लाइन हमेशा याद रखती हूँ, जो मैं अक्सर अपनी फैमिली में भी, बच्चों को भी, या फिर मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं उनसे भी कहती हूँ. ओटीपी मीन्स ओनली टू पर्सनल यूज. ये एक शॉर्ट फॉर्म हम याद रख लें, दैट्स इट. ओटीपी ओनली टू पर्सनल यूज. ये चीज एक ऐसी है जो हमारे पर्सनल यूज के लिए है, किसी और को इसके बारे में पता होने की जरूरत नहीं. नोबडी नीड्स टू नो कि आपके फोन पे कौन सा ओटीपी आया है, आपके कार्ड की सीवीवी क्या है. इनफैक्ट आपके कार्ड का नंबर भी नहीं पता होना चाहिए किसी को. आपके कार्ड का नंबर भी सिर्फ आपको पता होना चाहिए. आपके बैंक ऑफिशियल के अलावा कोई भी और इंसान आपका कार्ड नंबर ना पता हो, उस कार्ड पे किसका नाम है वो ना पता हो, कार्ड की वैलिडेशन डेट क्या है वो नहीं पता होनी चाहिए. आपके कार्ड की तो कोई भी डिटेल किसी को पता नहीं होनी चाहिए. देन कम्स दी ओटीपी सीवीवी, वो तो मेजरली हमें हर कोई बताते ही रहते हैं. ये सब चीजें हम अक्सर सुनते ही रहते हैं अपने आसपास कि ओटीपी, सीवीवी, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, ये सब नहीं पता होनी चाहिए. दिस इज जनरल थिंग जो आज की डेट में हम सबको पता है. बट कार्ड की डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कार्ड नंबर, कार्ड की वैलिडेशन डेट, कार्ड पे किसका नेम है, ये सब भी नहीं पता होनी चाहिए. हमें लगता है ये सारी जनरल डिटेल है, बट नहीं. ये डिटेल्स आप सिर्फ उस इंसान को देते हो जिससे आपको अगर कोई पेमेंट रिसीव करनी है, आपका कोई कस्टमर है, आपका कोई फैमिली मेंबर है जो आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा है, सिर्फ उस इंसान को आप जाके बताओगे, वो भी तब जब वो आपसे मांगेगा. यस, ऑन ऑल्सो फ्रॉम योर किड्स, बिकॉज योर किड्स डोंट नो कि वो कितनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक छोटी सी डिटेल ना पूरा खेल मतलब बदल के रख देती है. बिकॉज आपको कोई फ्रॉडस्टर कॉल करेगा और बाय एनी चांस उसको आपका कार्ड नंबर पता है, उस पे ये पता है कि आपके कार्ड की वैलिडेशन डेट क्या है, आपके कार्ड पे किसका नेम है, आपका नेम है या आपके हस्बैंड का नेम है. अब वो अगर बिल्कुल सही से ही बता रहा है कि कार्ड पे नाम आपके फादर का है या आपकी मदर का है, ब्रदर का है, हस्बैंड का है, किसी और का है, और वो कार्ड नंबर भी सही बता रहा है कि इस नाम से, तो मतलब जो नाम मैं बता रहा हूँ इस नाम पे ये कार्ड नंबर है. अब अगर नाम और कार्ड नंबर मैच हो गए तो फिर एकदम से वो लगता है ना कि हाँ इनको पता है, दैट मीन्स ये हमारे बैंक ऑफिशियल ही होंगे. बिकॉज बैंक ऑफिशियल के अलावा तो किसी को पता नहीं होता. वैसे तो बैंक ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होता. अज्यूम क्यों, आपके बैंक ऑफिशियल्स को भी आपके कार्ड का नंबर और आपकी कार्ड पे किसका नाम है ये नहीं पता होगा.
कैन एनीबडी टेल मी कि क्यों बैंक ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स? आपने कभी एक चीज सिंपल सी नोटिस करी है? आपका जो कार्ड आता है ना, वो एक एनवलप में बंद होके आता है। वो एनवलप किसी ने नहीं खोला होता। जो आपका कार्ड इशू होता है ना, वो कार्ड जब आपका इशू हुआ वो पैक हो जाता है। अगर किसी ने इशू करते वक्त देख लिया हो तो वो चीज अलग है, लेकिन आपके बैंक ऑफिशियल्स के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। इट्स कॉन्फिडेंशियल, दे डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्ड। यस, आपके बैंक ऑफिशियल्स के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, बिकॉज जब वो कार्ड आता है बैंक के पास, वो एनवलप में सील्ड होता है, और आपके पास भी वो एनवलप सील्ड पहुंचे, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपके बैंक ऑफिशियल ने भी कभी भी आपका कार्ड देखा ही नहीं। उन्हें नहीं पता आपके कार्ड का नंबर क्या है, उन्हें नहीं पता उस कार्ड पे किसका नाम है, उन्हें नहीं पता कि आपके कार्ड की लास्ट वैलिडेशन डेट क्या है। सो नोबडी शुड नो दीज डिटेल्स। अगर किसी को पता है ये सारी चीजें, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज somehow फाउंड आउट योर डिटेल्स। उसने ढूंढ के निकाली है आपकी ये सारी डिटेल्स। They can't even tell what is the phone number associated with the card. Yes, they can't even tell what is the phone number that is associated with the card. They will ask you that कौन सा फोन नंबर आपने इसमें रजिस्टर करवा रखा है। Even the checkbooks are to dispatched at home. Yes, exactly. checkbooks भी आपके डायरेक्टली घर पे डिस्पैच होती, तो ये डिटेल्स आपके बैंक को भी नहीं पता होती। तो अगर किसी और को पता है तो उन्हें कैसे पता लगी? उन्हें नहीं पता होनी चाहिए। So if anyone is asking you for these confidential details, और उन्हें अगर आपकी कार्ड डिटेल्स, आपकी अकाउंट डिटेल्स, आपके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कौन से ब्रांच में आपका अकाउंट है, ये सारी डिटेल्स अगर किसी को पता है, then that person is not actually verifying your identity. He is not verifying कि आपका अकाउंट क्या है। वो वेरीफाई नहीं कर रहा उस चीज को। वो कहेगा कि मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ, नहीं, वो वेरीफाई नहीं कर रहा है। ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू स्टील योर आइडेंटिटी एंड ट्राइंग टू स्टील द एसेट्स दैट यू हैव। वो आपके एसेट्स को आपसे स्टील करने की, आपसे लेने की कोशिश कर रहा है। वो आपको ट्रिक कर रहा है ताकि आप उनकी बातों को सच मान के उन्हें सब कुछ बता दो। एआई वॉइस क्लोन और डीप फेक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए भविष्य में अपनी पहचान कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है? सो डीप फेक, हाँ, वॉइस क्लोन करी जाती है, डीप फेक यूज करा जाता है। यस, ऐसे में जब आपके पास कोई भी कॉल आ रहा है ना, अच्छा, आपके पास कोई कॉल आता है एंड दैट पर्सन, व्हाट विल ही से? फर्स्टली, सबसे पहले ना, अच्छा, एक मैं चीज बताती हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ। हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को ना ये बोलते हैं एज एन एडवोकेट, दैट ऑलवेज ऑलवेज रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरी वेरी केयरफुली। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब साइन करने जा रहे हो ना, तो उसका एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ो। इवन 10 बार पढ़ो अगर आपको जरूरत है तो। जब तक आपको उसके एक एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ जाता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तब तक उसे पढ़ो और उसके बाद ही साइन करना। सेम चीज मैं इसमें कहूंगी, सेम चीज मैं यहाँ पे कहूंगी। जब भी आपको वो कॉल करेंगे ना, आप उस कॉल को, ठीक है, अटेंड करो, देन उसके बाद उनसे कहो ओके गिव मी 5 minutes, आई विल कॉल यू बैक। देन एक बार अपने दिमाग में रिवाइंड करो वो सारी बातें जो उन्होंने आपसे कही। वही आपका सबसे बड़ा आंसर है। उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक छोटी सी ऐसी चीज होगी जो आपको बता देगी दैट ही इज ट्राइंग टू चीट यू, बिकॉज वो आपसे कोई ना कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगेंगे जो कि आपको नहीं बतानी। अगर वो आपसे मान लो कोई भी ओटीपी मांग रही कि मम्मी मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरे को ना आप एकदम ये ना ओटीपी आपके पास आ रहा है, आप एक बार फटाफट मुझे ये बता दो, वो ये पूछेंगे आपसे। या आपसे कहेंगे कि सुनो बेटा मैं ना यहाँ पे फंस गई हूँ, आपके पेरेंट्स है, बेटा मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है,
तू प्लीज एक बार मेरे को फटाफट पैसे ट्रांसफर कर दे, मैं तेरे को भेज रही हूँ, इस पे पैसे ट्रांसफर कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हेयर ओनली, क्योंकि वो पैनिक क्रिएट करने के लिए ना उस एक कॉल में ही आपको सब कुछ बोल देंगे, ताकि आप एकदम से ना, अच्छा अच्छा मैं अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, हाँ बताओ मुझे कहाँ करना है, क्या हुआ। आपका रेस्पॉन्स ये होगा, नहीं। आज की डेट में मैं ये कहूंगी, इवन इफ कितनी ही क्रूशियल सिचुएशन है ना, आप भले ही इस बात को अपनी फैमिली में बैठ के डिस्कस कर लो बिफोर एनीथिंग बैड हैपेंस। मैंने खुद ये चीज अपनी फैमिली में कर रखी है कि एक तो हमने आप कुछ ऐसे ना लाइक सीक्रेट कोड्स टाइप बना लो। आप कुछ ऐसे क्वेश्चन करो जो बिल्कुल ना आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन करो। कोई भी ऐसा कॉल आता है, कोई भी ऐसे अर्जेंट कॉल आता है, होता है जेन्युइनली अर्जेंट कॉल्स भी होते हैं, जेन्युइन अर्जेंट कॉल्स होते हैं कि सुनो फटाफट इतने पैसे भेज दो, होता है, ठीक है। तो ऐसे में ना एक क्वेश्चन करो, और एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, एक बिल्कुल कहीं किसी चीज से रिलेट ना करता हो। उस क्वेश्चन का एक ऐसे ही अतरंगा सा आंसर भी बना लो। अब आपको पता है आपने ये क्वेश्चन करा और आपके पास वही आंसर आया जो हमने डिसाइड किया था, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। या फिर आप अपनी फैमिली में इस चीज को एक बार डिस्कस कर लो कि इफ ऐसी कोई क्रूशियल सिचुएशन आती है तो आप लोग मुझे 10 मिनट या 15 मिनट दोगे कि मैं उस चीज को एक बार वेरीफाई कर लूं, एक बार एनालाइज कर लूं कि क्या ये सिचुएशन सच में क्रिएट हुई है। अगर वो बोलते हैं कि बेटा मैं यहाँ पे फंसी हूं, मैं ऐसे ऐसे हो गया है, पहले तो एक बार रिवाइंड करो। ठीक है। कोडवर्ड्स रखने पड़ते हैं, हमें कोडवर्ड्स रखने पड़ते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। गैंग्स जो भी फ्रॉडस्टर है वो आपको कॉल करेगा, अब वो तो आपसे स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेगा, राइट। तो आप कोई ऐसी बात है जो सिर्फ आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में है, वो ही चीज सारी चीजों को बदल देती है। आप कोई ऐसा क्वेश्चन करो जो सिर्फ आपके बीच में है, तो वहां पे जब आपको आंसर सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा, आपको पता लग जाएगा ना कि हाँ ये मेरा फैमिली मेंबर है या नहीं। और आप अपनी फैमिली से ये चीज डिस्कस करो कि 10-15 मिनट्स में चाहिए मुझे बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, इवन इफ यू आर अंडर अ क्रूशियल सिचुएशन। क्रूशियल सिचुएशन में भी आप कम से कम 5 मिनट तो निकाल सकते हो कि 5 मिनट चीजों को होल्ड पे डाल दो, कि 5 मिनट रुक जाओ बस, अभी मैं कर रही हूँ। उस 5 मिनट में आप एक बार कॉल को रिवाइंड करो, एक बार ध्यान से सोचो उस पर्सन ने आपको ये बताया कि वो कहाँ पे है, जो आपका फैमिली मेंबर है उन्होंने बताया वो कहाँ है, किस जगह पे खड़े हैं, एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या है, क्यों उन्हें अचानक से ये पैसे चाहिए। अगर जेन्युइनली आपका फैमिली मेंबर होगा ना, तो वो इन सभी सवालों के जवाब देगा। एंड आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया है कि आपकी फैमिली मेंबर्स कहाँ गए हैं, अगर जैसे मान लो आपके फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर हैं, मैं इस वजह से मैं अक्सर ये रखती हूँ कि मैं ये अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ आपको। मैं अक्सर टाइम टू टाइम अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करके बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। इससे मुझे पता रहता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन आपको कोई फेक कॉल कर रहा है, तो वो पर्सन अगर ये वाली गलती उनसे हो गई ना छोटी सी, कि वो आपको ये बताए कि वो कहाँ है और वो जगह उस जगह से मैच नहीं कर रही जहां आपको पता है कि आपकी फैमिली मेंबर है, वहां पे इट विल क्लिक टू योर माइंड, नहीं वो वहां तो नहीं थे, तो वहां कैसे चले गए। ये चीजें फिर आप अपने फैमिली मेंबर को इंस्टेंटली कॉल करो, वेरीफाई करो। अगर किसी और नंबर से उन्होंने कॉल करा है, वो डेफिनेटली किसी इंटरनेट नंबर से कॉल करते हैं, उसका नंबर को ट्रेस नहीं करा जा सकता, उस नंबर पे दोबारा कॉल नहीं जाती, अक्सर सेकंड कॉल आपकी उस पे नहीं जाएगी, क्योंकि वो फ्रॉड नंबर्स होते हैं, इंटरनेट नंबर्स होते हैं, वो एक बार जनरेट होते हैं देन दे आर डेड। बिकॉज ताकि वो नंबर ट्रेस ना हो सके, इसलिए यू कैन नॉट कॉल बैक ऑन दैट नंबर। तो आप अपने फैमिली मेंबर को कॉल करो कि हाँ आप कहाँ हो, मुझे बताओ क्या हुआ आपके साथ, क्या अर्जेंसी है। अगर तो जेन्युइन नंबर होगा, जेन्युइनली
किसी सिचुएशन में फंस गए। मेरे साथ ये चीज हुई है, मतलब आई हैव नॉट बीन अ विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड, बट आई हैव माय फैमिली हैज बीन इन अ सिचुएशन कि जहाँ अर्जेंटली इट वाज अराउंड 10:30, माय हस्बैंड वाज समवेयर आउट एंड ही नीडेड मनी एंड हिज फोन वाज डेड, his phone was literally dead and he called me from someone else's phone. So I did verify asking him कि आप कहाँ हो, आपको क्यों अचानक से पैसे, questions to actually confirm even if he was somewhere standing, he needed money. वो एक था कि भाई उन्हें उसी वक्त जरूरत है और रात के 10:30 बज रहे हैं, टाइम भी ऐसा है, बट आई डिड आस्क few questions to him to actually give myself satisfaction कि हाँ कोई अभी झूठ बोल के कुछ नहीं कर रहा, एक्चुअली में उन्हें पैसे चाहिए एंड आई शुड सेंड हिम मनी. सो दैट्स कि किसी भी क्रूशियल सिचुएशन में, कितनी ही क्रूशियल सिचुएशन है ना, आप एक बार अपने फैमिली मेंबर से 5-10 मिनट लो कि भाई मैं एक बार वेरीफाई कर लूं इस चीज. सेम चीज आपकी जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रही थी कि रीड द डॉक्यूमेंट्स, रीड द वट एवर इज रिटन बिफोर यू, और जो भी आपसे कह रहा है एक बार उसको आप रिवाइंड करो. सेम थिंग इज फॉर जो फ्रॉड लिंक्स होते हैं उनके लिए. फ्रॉड लिंक्स जो आपके पास आते हैं ना, फ्रॉड लिंक्स में भी आप कभी उन लिंक्स को ध्यान से पढ़ना, कहीं ना कोई गलती या कोई चेंज होगा. आपके पास कोई लिंक आया, फॉर सपोज जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आया, किसी कंपनी ने आपको बोला दैट योर प्रोफाइल इज सुटेबल फॉर सो और सो जॉब एंड सो और सो कंपनी. फर्स्टली आप वो जो लिंक है, वेबसाइट है, उसको आपको क्लिक नहीं करना, पहले उसे पढ़ो ध्यान से. इफ दैट सीम्स लाइक अ जेन्युइन वेबसाइट, इफ दैट सीम्स लाइक अ ओरिजिनल लिंक और नॉट, सिक्योर्ड है या नहीं है. सेकंड, जो भी कंपनी है ना उसे गूगल पे सर्च करो. सबसे पहला पार्ट होता है ये, गूगल पे जाके सर्च करो गूगल क्या बता रहा है, वो कंपनी सच में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, ये चीज पहले पता करो. गूगल पे पूरी रिसर्च करो कि ये कंपनी कहाँ पे है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, इसकी ईमेल आईडी क्या है, इसका फोन नंबर क्या है. अब अगर आपको ये सारी डिटेल मिल गई, कॉल टू दैट कंपनी कि क्या आपके कंपनी में ऐसी कोई जॉब ओपनिंग है, मुझे ऐसा ऐसा एक मैसेज रिसीव हुआ है आपकी कंपनी की तरफ से. डू नॉट हेजिटेट, जस्ट गो एंड वेरीफाई वॉट एवर यू आर रिसीविंग. बिकॉज ये वेरिफिकेशन जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो हम करेंगे, हम थोड़ा सा खुद को पजल करेंगे, हम इतना वेरिफिकेशन करेंगे, इतना ढूंढेंगे, इतना रिसर्च करेंगे, बट this thing will save you from losing your hard earned money and your life savings. मुझे जब भी कोई ऐसा मैसेज आता है कि किसी कंपनी की तरफ से, when I was searching for a job, when I was in that stage, after I completed my college, I also received many such messages because मैं इतनी सारी जगहों पे अप्लाई कर रही थी, लिंक्डइन पे कर रही थी, इंडीड पे कर रही थी, इतनी सारी जगह पे कर रही थी, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपके एसईओ में चला जाता है कि आप जॉब सर्च कर रहे हो. अब आपका एसईओ पे आ चुका कि यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं से डेटा फिर फ्रॉडस्टर्स को भी मिलता है कि ओह शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, सो नाउ वी कैन ट्रिक हर फॉर गेटिंग अ जॉब एंड वी कैन गेट मनी फ्रॉम हर. एनीबडी कैन डू दैट. मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते थे. इनफैक्ट समटाइम्स आपको इंस्टाग्राम पे आएंगे ऐसे जॉब के ऑफर्स, एडवर्टीजमेंट दिखेंगे जॉब्स के, वो सबसे बड़े झूठ होते हैं. जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो जॉब के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, वो कभी सच नहीं होते, कभी नहीं. आई वुड से उनमें से 1 in million कोई एक ऐसा होगा जो जेन्युइन होगा.
बाकी सब के सब फेक होते हैं, सब लिटरली। आई वुड से जेन्युइन जॉब ऑफर्स आपको जो मिल सकते हैं ना, जो लेजिट होते हैं, जो बिल्कुल वेरीफाइड होते हैं, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगी इंडीड या लिंक्डइन पे, क्योंकि वहां पे कंपनीज वेरीफाइड होती हैं, वहां पे जेन्युइनली कंपनीज के पेजेस होते हैं। एंड सेकेंडली लिंक्डइन पे भी ना, उस कंपनी के पेज पे, जो कंपनी का ऑफिशियल पेज है ना लिंक्डइन पे, उस पे वो जॉब पोस्ट डली होगी, कहीं और नहीं डली होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है या कोई थर्ड पार्टी पेज है जो किसी और कंपनी का एडवर्टीजमेंट आपको दिखा रहा है कि इस कंपनी में सो एंड सो जॉब ओपनिंग है, वो भी झूठ है। दैट इज ऑल्सो अ लाई, दैट इज ऑल्सो फेक। वो भी आपके, दैट इज टोटली स्कैम। आपको उसके लिए अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल नहीं। दैट इज ऑल्सो अ ट्रैप। When I used to receive such messages, first thing I used to do is मैं जाके गूगल पे ढूंढती थी कंपनी के बारे में। I used to search a lot। मैं सारी वेबसाइट्स, रिव्यू वेबसाइट्स भी होती हैं, बहुत सारी रिव्यू वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास, रेडिट वगैरह है जिन पे कंपनी के रिव्यूज होते हैं, कंपनी की वेबसाइट के रिव्यूज होते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, बहुत सारी चीजें हैं। आप गूगल पे उस कंपनी का नाम जब सर्च करोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सेम नेम की कई सारी अलग कंपनीज भी मिलेंगी, बिकॉज रजिस्टर्ड कंपनी एक ही है जिसने ट्रेडमार्क ले रखा है। बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिन्होंने बिना ट्रेडमार्क लिए उसी कंपनी का नाम यूज कर रही हो, या फिर सेम नेम से किसी और ने कंपनी खड़ी कर ली हो और उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर ना करवाया हो, तो उसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। ये ऐसी कंपनीज भी चल रही होती हैं। तो वो सारी कंपनीज गूगल आपके सामने लाके रख देगा। आस्क गूगल, रिसर्च अबाउट इट, उस कंपनी के बारे में सब कुछ ढूंढो। कौन सी कंपनी है, कहाँ पे है, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, सब पता लग जाएगा आपको वहां से। गूगल is the first and the foremost precaution which can save you from getting into any trap, I would say. Okay, so one thing I would like to discuss with you. आप सब अभी ये सोच रहे होंगे दैट मैम ये सारी चीजें हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं, हम सब जानती हैं सारी चीजें कैसे हैं, कैसे होती हैं, कैसे फ्रॉडस्टर्स हमें ट्रिक करते हैं, हम सबको पता है कि हमें ये डिटेल्स शेयर नहीं करनी है। देन व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट हियर? मैं क्यों आप सबको ये सारी चीजें इतनी एक्सप्लेन कर रही हूँ? बिकॉज इवन इफ वी आर वेल नॉलेज्ड, वी नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, तब भी हम गलती कर जाते, तब भी हम कई बार यू कैन से हम कई बार हम किसी सिचुएशन में फंसे। मान लो मैं, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे कॉलीग हैं, वो उनकी 20+ ईयर्स की एडवोकेसी है, उनकी एज एन एडवोकेट उनकी प्रैक्टिस 20+ ईयर्स की है। एंड उनकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ, एंड उनकी वाइफ भी, शी हैज डन बीकॉम, एमकॉम, एमफिल एंड पीएचडी, एंड करंटली शी इज वर्किंग विद जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। वो करंटली जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में रिक्रूटेड हैं एट अ वेरी गुड पोजीशन। एंड अराउंड ईयर 2018 दिस थिंग हैपेंड विद हर। उनके साथ भी ये चीज हुई, एंड voluntarily she had transferred 45,000 rupees from her account. How this thing happened, he told me everything about it. So she was doing her work, she was at her workplace, she was busy, वो अपना काम कर रही थी। एंड एट दैट टाइम उनके जो हस्बैंड है, जो मेरे कॉलीग हैं, उनका पेटीएम वाज नॉट वर्किंग, समहाउ ही वाज अनेबल टू रिसीव पेमेंट्स। कुछ बैंक लिंक में प्रॉब्लम थी कि बैंक से यूपीआई लिंक नहीं हो पा रहा था, एंड सम प्रॉब्लम वाज गोइंग ऑन उस टाइम पे। सो जो उनके क्लाइंट्स की पेमेंट्स थी, वो अक्सर क्या करते थे कि वो अपने क्लाइंट की पेमेंट्स लेने के लिए उनकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे कि आप मेरे वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो एंड दैट वी विल बी गुड टू गो। उनकी वाइफ के पास एक दिन व्हेन शी वाज वर्किंग, उनके पास एक कॉल आया, एंड दैट पर्सन क्लेम टू बी अ क्लाइंट ऑफ हर हस्बैंड। उन्होंने उनसे कहा कि मैम
उन्होंने बड़ी फ्रैंकली उनसे बात करी, इनफैक्ट इस तरीके से बात करी कि जैसे वो उन्हें जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने फोन उठाते के साथ द पर्सन वाज लाइक, और नमस्ते मैम, कैसे हैं आप, सब ठीक है, तारकेश जी ठीक है घर में। सो ही न्यू हर हस्बैंड्स नेम, ही न्यू दैट दे वेयर दे लिव। तो उन्होंने बड़ी कैजुअली बात की कि सब ठीक है घर में, कैसे है सब लोग। अ, तो उन्होंने कहा हाँ जी सब ठीक है, सब ठीक है। एंड शी वॉज, बिकॉज शी वॉज बिजी विद हर वर्क, उस टाइम वो अपना काम कर रही थी, तो उस टाइम पे उनका भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा पाया उस चीज पे कि हु इज द पर्सन कॉलिंग इन एनीथिंग। शी वाज लाइक हाँ जी आप बताइए। तो दैट पर्सन सेड कि वो ना, मुझे एक पेमेंट उनको करनी थी, तो उनका यूपीआई काम नहीं कर रहा, तो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। उनको वो पेमेंट मुझे भेजनी थी, वो एक केस था हमारा। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है आप भेज दो। उन्होंने अपनी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, अकाउंट डिटेल्स दी उन्होंने कि हाँ आप इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब उनके पास, उन्होंने कहा कि अच्छा मैम मैं ना एक बार पहले ना 500 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप एक बार चेक करो, अगर आपके पास आ गए तो फिर मैं बाकी की पेमेंट भी ट्रांसफर कर दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कॉल रखा एंड शी कंटिन्यूड विद हर वर्क। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। शी वॉज कंप्लीटिंग हर वर्क ऑन दैट टाइम। तो उनके पास मैसेज आया, पेमेंट का नोटिफिकेशन आई, तो उन्होंने जस्ट देखा कि हाँ 500 रुपीज रिसीव्ड एंड ठीक है आ गए, जस्ट चेकड इट एंड दैट्स इट। अब वो उस पर्सन का दोबारा कॉल आया उनके पास कि मैम मैंने पैसे भेजे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ आ गए आप कर दो पेमेंट। ठीक है, उनके पास दूसरा मैसेज आता है ना, दूसरा मैसेज उनके पास आता है, उसमें लिखा है दैट 50,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। उन्होंने वो देखा, अब उन्होंने देखा एंड रख दिया। तो फिर उसके बाद दोबारा उस पर्सन का कॉल आया कि मैम मैंने ना गलती से ना 50,000 रुपीज आपको ट्रांसफर कर दिए हैं, 5,000 रुपीज की पेमेंट है, आप वो मैंने गलती से जल्दी जल्दी में एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो आप 45,000 रुपीज मुझे मेरे प्लीज रिटर्न कर दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं कर देती हूँ। एंड उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो अपने काम में इतनी स्टकअप थी उस टाइम पे, वो अपने काम पे ध्यान दे रही थी, वहां एक छोटी सी उनकी लापरवाही ने उनके 45,000 का लॉस करवा दिया। उन्होंने फटाफट अपना खोला वो यूपीआई एंड देन उन्होंने 45,000 ट्रांसफर कर दिए। आफ्टर सम टाइम शी कॉल्ड हर हस्बैंड। उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसे ना एक क्लाइंट का फोन आया था और वो ऐसे ऐसे करके बोल रहा था कि 5,000 उसे देने हैं आपको, उसने 50,000 भेजे थे और गलती से 50,000 भेज दिए थे, तो मैंने 45,000 उसको रिटर्न कर। इंस्टेंटली उनके हस्बैंड को तो क्लिक कर गई वो चीज। तो उन्होंने बोला कि आप अपना अकाउंट चेक करो पहले जाके, क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट का स्टेटमेंट तो एक बार भी जाके नहीं खोला। जो उन्हें वो पेमेंट नोटिफिकेशन के मैसेजेस आए थे दे वर फेक, वो बैंक से नहीं आए थे, वो डायरेक्टली बैंक के जो हमारे पास बैंक का नोटिफिकेशन का एक अलग ही ट्रेल चल रहा होता है, उस ट्रेल पे नहीं आए थे। वो अलग मैसेज आया था, दैट वाज अ फेक मैसेज। उनके अकाउंट में कभी कोई 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं हुआ एंड उन्होंने ध्यान नहीं दिया एंड उन्होंने 45,000 रुपीज उनकी जेब से चलेगा, उन्हें कोई पैसा नहीं है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये इतनी छोटी छोटी चीजें, ये इतनी सिली चीजें हमें लगेंगी कि ये तो सबको पता है मैम, बट मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें सब पता होने के बावजूद भी हमारे साथ ये चीजें होती हैं। एंड आज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप्स आपको क्या लेने हैं, कैसे इन चीजों से खुद को बचाना है, क्या करें, क्या फटाफट फटाफट आपको क्विक एक्शंस लेने हैं सबसे पहली चीज, और आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि पहली चीज तो हम प्रिकॉशंस लेके चलें, बिकॉज आई हैव सीन एंड आई एम कॉन्टिन्यूसली बीइंग एन एडवोकेट, डेली मैं इतने केसेस एंटरटेन कर रही हूँ, इतने केसेस देख रही हूँ, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो सालों साल चलते हैं। एंड इसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है, कन्विक्शन कभी नहीं होता। कन्विक्शन
बेसिकली मीन्स कि जो क्रिमिनल है वो पकड़ा जाए, कभी नहीं। नेवर एवर एक्सपेक्ट कि आप, जो वो क्रिमिनल है जो ये सारा कुछ कर रहा है वो कभी पकड़ा जाएगा, नेवर। कन्विक्शन तो कभी इसमें होता ही नहीं है। एंड हाँ, मैं ये आपको बता सकती हूँ कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। आपके पैसे बचाने के लिए सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वेरी क्विक, वेरी स्पीडी। आपको क्विक एक्शन लेना होगा द मोमेंट यू रियलाइज कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। क्योंकि जितना आप देर करते जाओगे ना, उतना ही आपका नुकसान होता जाएगा, क्योंकि उतना ही पैसों को रोकना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जो ये फ्रॉड कर रहे हैं ये तो वेल प्लान्ड बैठे हैं, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, ये पूरा अपना सिस्टम सेट करके बैठे होते हैं। इन्हें पता है पैसे आते के साथ उस पैसे के साथ क्या करना है, वो पैसा कहाँ जाएगा, किसके अकाउंट में जाएगा, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। ऐसा ही, क्योंकि एक एक और केस मेरे मेरे पास आया था मेरे फ्रेंड का। दैट वन ऑफ माय फ्रेंड, उनका दे हैव बिजनेस विद फॉरेन एक्सचेंज। वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। वन टाइम ही टोल्ड मी दैट एक बार क्या हुआ, उसके पास एक पेमेंट आई थी एंड वो पेमेंट ट्रांसफर हुई उसके पास, उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई, $2,000 क्रेडिट हुए उसके पास। तो अब क्योंकि वो फॉरेक्स में डील करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, तो उनके डॉलर्स में आए, देन ही हैड टू विड्रॉ द मनी इन इंडियन करेंसी। तो उन्हें बैंक से जाके वो पैसे विड्रॉ करवाने थे। तो अ, वो उस टाइम पे सबसे पहले गए, किसी ब्रांच में गए थे वो अपने बैंक के, एंड उस टाइम पे ना वहां पे सर्वर डाउन था। हाँ, बीकाजी कामा प्लेस वाली ब्रांच थी, आई रिमेम्बर। तो वहां पे सर्वर डाउन, तो अब वो सर्वर डाउन था, तो ही वहां पे उनका पैसा विड्रॉ नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप एक दो दिन बाद आ जाना। तो ही थॉट कि एक दो दिन बाद फिर से मैं आऊंगा, फिर वो करूंगा। तो ही केम बैक होम, एंड फिर जो घर के पास में जो ब्रांच थी, तो वहां पे वो जाके एंड उन्होंने जाके वहां पे अप्लाई करा कि मैं वहां से विड्रॉ कर लेता हूँ पैसे। उस ब्रांच का तो सर्वर शायद वर्क कर रहा होगा। तो व्हेन ही रीच देयर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डिटेल्स वगैरह बताई कि ऐसे ऐसे ये मेरा अकाउंट डिटेल्स हैं, ये अमाउंट इसमें क्रेडिट हुई है, मुझे ये विड्रॉ करनी है। यू वोंट बिलीव व्हाट द बैंक ऑफिशियल सेड टू हिम। बैंक ऑफिशियल ने उनसे बोला कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो क्या? अभी तो तुमने पैसे निकाल लिए, अब फिर से तुम्हें निकलवाने हैं। ये बैंक ऑफिशियल ने उससे बोला। क्यों बोला? ऐसे क्यों बोला उसने? वो तो उसका अकाउंट है, उसके पैसे वो निकालने आया है, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं उनसे कि भाई तुम फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अभी तो पैसे निकाले हैं, अब तुम्हें फिर से पैसे क्यों चाहिए? बिकॉज इससे पहले कि वो अपने पैसे विड्रॉ करता, आगरा में कहीं किसी ने आगरा की ब्रांच से वो अमाउंट, वो $2,000 विड्रॉ करवा लिए थे, उसकी अकाउंट डिटेल्स यूज करके, उसकी सारी डिटेल्स को इम्पर्सोनेट करके। दैट पर्सन एक्टेड लाइक माई फ्रेंड, एंड वो सारा कुछ उन्होंने उन्होंने पैसे विड्रॉ करवा लिए। हाउ वो इस तरह? बिकॉज ही हैज हिज अकाउंट डिटेल्स एंड हिज सिग्नेचर एज वेल। यही चीज होती है दैट दे कैन फाइंड। वो कहीं से अगर आपकी डिटेल्स निकाल लेना, तो यहाँ पे वो आप, दे कैन इम्पर्सोनेट योर आइडेंटिटी। इसीलिए आपकी ये डिटेल्स बहुत जरूरी हैं कि वो ना कहीं पे, मतलब आप बिल्कुल ऐसे सिक्योर रखो कि लिटरली कोई ना देख पाए उसको, कोई भी नहीं, किसी को कभी ना मिले। इवन हम कई बार कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, मेरे साथ ये चीज बहुत होती है दैट मैं कुछ डॉक्यूमेंट साइन करती हूँ, समटाइम्स ड्राफ्ट बनाती हूँ मेरे केसेस के, तो उसमें क्या है, मैंने उन्हें साइन कर दिया। नाउ सडनली, आई एम सॉरी, नाउ सडनली उसमें कोई चेंज आ गया, या मेरे क्लाइंट ने कहा कि ये चीज चेंज कर दो, तो उसमें क्या हुआ, अब मुझे वो
पूरा ड्राफ्ट चेंज करना है तो मैं उसका प्रिंट आउट दोबारा निकालूंगी, दोबारा उसे साइन करूंगी। नाउ अब जो मैंने पहले जो डॉक्यूमेंट साइन करा उस पर मेरे सिग्नेचर्स हैं। हम कई बार ना बिना ध्यान दिए ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स फेंक देते हैं जिन पे हमारे सिग्नेचर्स होते हैं या हमारी कोई डिटेल लिखी होती है। हम बस उसे ऐसे ही क्रश करते हैं एंड वी जस्ट थ्रो इट अवे। हमें ऐसा कभी नहीं करना। मैं ये कहूंगी, भले ही कुछ और नहीं, आपकी जो डिटेल है कहीं पे, आपका फोन नंबर, आपका हाउस एड्रेस, आपकी कोई भी डिटेल, मैं तो कहूंगी माइनर से माइनर डिटेल, आपका नाम भी अगर कहीं लिखा है ना, उसको भी, उस हिस्से को ना ऐसे बिल्कुल टुकड़ों में फाड़ दो। सिग्नेचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक डिटेल्स तो सबको ही पता है, वो तो फाड़नी ही फाड़नी है। बट मैं तो कहूंगी आपका नाम भी, अगर किसी पेज पे आपका नाम लिखा है और आपको उसे फेंकना है ना, टीयर इट ऑफ, उसके छोटे 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 टुकड़े करो एंड देन थ्रो इट अवे। डोंट एवर थ्रो योर डॉक्यूमेंट्स ऐसे। तो कई बार हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स फेंक देते हैं एंड उसमें से हमारी डिटेल्स मिल जाती है, हमारी डिटेल्स निकल आती है। उन्हें यूज करके बहुत इजी है कि आपको इम्पर्सोनेट कर लिया जाए। बिकॉज बैंक ऑफिशियल ने आपकी शक्ल थोड़ी देखी है, वो आपको चेहरे से थोड़ी पहचानेगा, वो तो आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, आपकी अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करेगा और आपको पैसे दे देगा। एज सिंपल एज दैट। तो अगर किसी के पास आपकी अकाउंट डिटेल पहुंच गई तो वो जाके आपकी अकाउंट डिटेल देगा और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। इसलिए सो दैट्स हाउ ही डिड इट, बिकॉज उनके पास उनकी डिटेल थी एंड आगरा में कहीं से उनके अकाउंट में से वो $2000 विड्रॉ हो गए एंड ही लॉस्ट हिज मनी। सच थिंग्स हैपेंस वेरी वेरी फ्रीक्वेंट। मैं हर दिन देखती हूँ कोई ना कोई चीज ऐसी हो रही होती है। वाई आई एम डिस्कसिंग प्रिकॉशंस हियर, बिकॉज आई नो दैट हाउ मच ट्रबलसम लिटिगेशन इज। मैं पर्सनली ये कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके इन केसेस को बंद करवाऊं, खत्म करवाऊं। बट मुझे पता है कि आप जितना मर्जी चाह लो, इट्स नॉट इन योर हैंड कंप्लीटली। लिटिगेशन एक बार स्टार्ट होती है ना, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, वो सालों साल चल जाती है। 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, वी नो हाउ इट इज। सो दैट्स वाई इट्स बेटर कि हम इवन सिली चीजें भी है ना, सिली चीजें भी हैं, उनमें भी हम बहुत विजिलेंट रहे, बहुत ध्यान दें। सिली सिली थिंग्स को भी बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से पढ़ें हर एक चीज को। मैं तो ये कहूंगी, अगर कभी आपके पास आपके ही किसी फैमिली मेंबर का मैसेज भी आ रहा है ना, बहुत ध्यान से पढ़ो उसको। रेगुलरली आप जो चैट कर रहे हो ना, उसको भी एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो, आपकी फैमिली मेंबर का फोन हैक हो गया हो या आपका फोन हैक हो गया हो जाता है। हैकिंग में लिंक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो लोग अक्सर सबसे पहले क्लिक करते हैं, वेडिंग कार्ड्स, इनविटेशंस, जोकिंग मैसेजेस एंड मीम्स एंड एपीके फाइल्स। इन चीजों को कभी 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 ओपन नहीं करना आपके फोन में। यस, एपीके फाइल्स तो सबसे सबसे ज्यादा मैं कहूंगी डेंजरस होती हैं। बिकॉज मेरे साथ ये चीज हुई थी, बट मैंने उस टाइम पे फटाफट से ना उसको डिलीट कर दिया था। देयर वाज अ टाइम आई वाज इन कॉलेज। मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ऑल्दो लकीली मेरा फोन हैक वैक नहीं हुआ था, बट मुझे एपीके फाइल्स का जो एक डेंजरस लेवल है ना, वो पता लगा। आई वॉज इन कॉलेज, सो हम कॉलेज में थे, वी ऑल लाइक टू वॉच सीरीज मूवीज एंड एवरीथिंग, एंड आई वॉन्टेड टू डाउनलोड अ लाइक क्रैक्ड वर्जन ऑफ एन ऐप। हम सब ये चीज करते हैं, वी ऑल डू दैट टू अवॉइड सब्सक्रिप्शन एंड एवरीथिंग। मैं कॉलेज में थी, मैंने भी ये चीज करी थी। सो आई ट्राइड टू डाउनलोड अ क्रैक्ड वर्जन ऑफ एन ऐप। मैंने ढूंढ के कहीं से उसकी एपीके फाइल निकाली एंड मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, लेकिन वो मेरी ऐप लिस्ट में कहीं नहीं है। मेरी ऐप लिस्ट में
वो कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रहा। मैंने वो ऐप डाउनलोड करा, वो मेरी ऐप लिस्ट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एंड मैं उसको सिलेक्ट तक नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं, जैसे हम लॉन्ग होल्ड करते हैं अपने एप्स को सिलेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा, वो मेरे आ ही नहीं रहा है मेरे फोन में, वो विजिबल ही नहीं है। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। फिर मैं सेटिंग्स में गई, मैंने कुछ कुछ करके उसको किसी तरीके से अपने फोन से हटाया था। आई डू नॉट रिमेम्बर, आई एम सॉरी, बट मैंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से कुछ कुछ करके उसको अपने फोन में से हटाया था। एंड देन मेरी सांस में सांस आई, ऑनेस्टली। उस दिन मुझे पता चला कि ये एपीके फाइल्स कैसी होती है, कितनी डेंजरस होती है। मैंने उस दिन के बाद से ना कभी भी कोई भी क्रैक्ड ऐप या कोई भी एपीके फाइल दोबारा अपने फोन में नहीं डाउनलोड, आज तक भी नहीं करती। और सबको ये बोलती हूँ, एपीके फाइल्स यूज नहीं करनी। कुछ भी यूज कर लो, कहीं से भी कुछ भी ढूंढ लो, बट एपीके फाइल्स मत डाउनलोड करो, क्योंकि वो एपीके फाइल्स में ना कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एपीके फाइल की फॉर्म में आपके फोन में वायरस डल जाएगा, ट्रैकर डल जाएगा, आपका फोन हैक हो जाएगा, और आप उसको कहीं से डिलीट तक नहीं कर पाओगे। आपको वो फाइल ही नहीं मिलेगी पूरे फोन में, कहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, उसका ट्रेस भी नहीं मिलेगा, कहीं से हटा नहीं पाओगे। Name of an app claim to provide you free but happens to charge you. Yes, madam, last week I got similar message with the APK file. Exactly. Once happened with me. Also, someone called and said, आपके पापा मुझसे 1500 रुपए देने हैं, उन्होंने बोला है कि आप भेजोगे मुझे, मैं स्कैनर भेजता हूँ आपको। तो आप अपने फादर से वेरीफाई करो सबसे पहले जाके कि पापा मुझे किसी को 1500 रुपए भेजना है, आपने किसी को ऐसे ऐसे बोला है। या विक्टिम को पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो डिजिटल लेवल है, प्रोफाइल केस हो या रियल लाइफ केस। इतना टाइम क्यों लगता है? एंड वुमेन्स के लिए काफी सारे साइबर लॉज हैं, बट स्टिल वुमेन्स डिजिटली सेफ नहीं है। बहुत सारे रीजंस है मैम। जस्ट ये डिले जो होता है केसेस में, बट ही सेड नो। एग्जैक्टली, सी, इस तरीके से होती हैं चीजें। हम सब, मैं सबसे पहले मैंने आपसे ये चीज, हम सबको ऐसा कुछ ना कुछ कॉल आता ही आता है, हम सब ने ये चीज फेस करी है। एंड समटाइम्स समहाउ क्या होता है, हम सबको समझ है कि हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, बट समटाइम्स क्या होता है, हम कहीं कहीं पे फंसे हुए हैं, किसी काम में फंसे हुए हैं, कुछ अर्जेंसी है। अब बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऑलरेडी किसी केस में हूँ, किसी केस के बीच में हूँ, मेरे पास रिपीटेडली कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे हैं किसी के, एंड आई विल जस्ट गो आउटसाइड एंड पिक इट अप, एंड कोई मुझसे कहेगा कि मैम ये ऐसे 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 कर दो। उस टाइम पे मैं ऑलरेडी इतनी पजल हूँ अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में ऑलरेडी 10 चीजें चल रही हैं। माई माइंड विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस वॉट दैट पर्सन इज सेइंग। ऐसी सिचुएशन में जब हम होते हैं तब हम ये गलतियां करते हैं। इसलिए मैं अक्सर, मैंने अब इस चीज को ना एक वो बना रखा है, पत्थर की लकीर। मैं कोई भी कॉल उठाऊं, कोई मुझे कुछ भी करने के लिए कहे, आई विल जस्ट से, सर प्लीज कॉल मी अब आफ्टर हाफ एन आवर, और आई विल कॉल यू बैक, एंड बिकॉज आई एम राइट नाउ इन अ मिडल ऑफ समथिंग। मैं कभी, व्हेन आई एम इन अ मिडल ऑफ समथिंग, मैं कभी किसी को एंटरटेन नहीं करूंगी, बिकॉज मैं पहले खुद उस चीज को सोचूंगी कि क्या है क्या नहीं है, सामने वाला क्या बोल रहा है मुझसे, क्या मांग रहा है मुझसे। ओके, कमिंग बैक टू कशिश मैम्स क्वेश्चन कि जुडिशरी में इतना डिले क्यों है। मैम बहुत सारे रीजंस होते। फर्स्टली, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जो केस प्रोसीडिंग्स होती है ना, मैं उसका एक प्रोसीजर आपको समझाती हूँ। इसमें सबसे बड़ी चीज है, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों की तरफ में से किसी एक की तरफ से भी थोड़ा सा भी डिले होता है ना, तो बहुत डिले हो जाता है। आई टेल यू, मुझे अपने एक एक केस में ना 2 महीने से पहले बताती हूँ। मैं कुछ डीआरटी एनसीएलटी के केसेस डील करती हूँ, जहां पे ना बैंक लोन्स के केसेस होते हैं। बैंक लोन्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने लिए होते हैं, एंड उनमें क्या है, जब बैंक की रिकवरी नहीं होती लोन की, तो वो फिर प्रॉपर्टी ऑक्शन पे देने लग जाते हैं। आई हैव सीन बैंक की तरफ से मुझे सेल नोटिस आ चुका, मेरे क्लाइंट को ऑक्शन नोटिस आ चुका, उनकी प्रॉपर्टी बिकने वाली है, एंड मुझे
कहीं से भी अर्ली डेट नहीं मिल रही ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टी को किसी तरह बचा सकूं, क्योंकि अगर अर्ली डेट नहीं मिलेगी तो फिर मैं अपना पार्ट कैसे प्रेजेंट करूंगी कोर्ट के सामने। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो इतने ज्यादा केसेस इकट्ठे हो चुके हैं, इतने पेंडिंग केसेस इकट्ठे हो चुके हैं कि आपको कभी भी डेट्स आपको हमेशा आगे जल्दी बहुत लेट लेट की मिलेंगी, आपको डेट्स कभी भी जल्दी की नहीं मिलेंगी। जो केस में नेक्स्ट डेट्स मिलती हैं वो कभी भी आपको 2 महीने 3 महीने से पहले की नहीं मिलती। तो अगर मान लो एक आ, किसी एक भी पार्टी ने, किसी दो दो साइड्स हैं तो किसी एक भी पार्टी ने अगर ये बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल कोई उनके फैमिली में सिचुएशन आ गई, कुछ सिकनेस है या कोई वो बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, एक पार्टी ने भी ये कहा ना कि मैम आज मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता या आज हम केस को प्रोसीड नहीं कर सकते, अब वो नेक्स्ट डेट पे चला गया। अब नेक्स्ट डेट 3 महीने बाद, 3 महीने बाद वो अगर प्रोसीड होगा नहीं होगा, अब इसमें पहला तो पार्टीज के पार्ट पे हो जाता है कि हम इंसान हैं, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आके खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि हम जिस दिन हमारी केस की डेट है उस दिन हम उस केस को प्रोसीड ना कर पाए, कभी पार्टीज अवेलेबल नहीं होती, कभी हम एडवोकेट्स अवेलेबल नहीं हो पाते। ये सिचुएशन होती है सबसे पहले। सेकंड, कभी कभी जजेस अवेलेबल नहीं होते, जजेस आर ऑन लीव। थर्ड सिचुएशन, पेंडेंसी तो है ही, समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं उनको कंडक्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे, एविडेंस की स्टेज पे जब केस पहुंचता है, ऐसे में इतने क्वेश्चंस आके खड़े होते हैं। पहले एक साइड की सुनी जाती है, दूसरी साइड की सुनी जाती है, फिर दूसरी साइड की सुनने के बाद जो फर्स्ट साइड है उसको कुछ नए क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, तो फिर उसको नेक्स्ट स्टेज पे दोबारा क्वेश्चनिंग होती है। बहुत सारी चीजें हैं मैम, इतनी सारी चीजें केस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हो जाती है ना कि वो डिले हो जाता है बहुत बार। बहुत बार ऐसा भी होगा कि टाइमली आपके केसेस क्लोज हो जाएंगे, बट बहुत बार ऐसे भी होगा कि केसेस बहुत बहुत डिले हो जाते, स्पेशली जो इंसान गलत है ना, जो द पर्सन हु इज ऑन द रॉन्ग साइड, ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि वो केस को खींचता जाए, पेंडिंग करता जाए, करता जाए, करता जाए। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। हम ये चीज बहुत फेस करते हैं, दैट हमने देखा है कि एक एक केस में आप यकीन मानोगे, फर्स्ट स्टेज होता है कि हम केस फाइल करते हैं, सेकंड स्टेज होता है कि हमने जो केस फाइल करा है उसका रिप्लाई हमें सेकंड पार्टी से आएगा। वो रिप्लाई का एक टाइम लिमिट है कि वो 30 डेज में फाइल होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर एक जेन्युइन रीजन पार्टी दे सके तो 120 डेज के अंदर वो फाइल हो जाना चाहिए, 120 डेज से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लॉज में लिखा हुआ है। बट इवन देन जो रिप्लाई है मेरे पास बहुत बार वो साल भर बाद, 2 साल बाद भी आए हैं। एंड बिकॉज जजेस के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि इफ दे आर सेटिस्फाइड दे कैन टेक दैट रिप्लाई ऑन रिकॉर्ड, एंड जो डिफेंस है उसको अपना केस डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। ये भी हमने फेस करा है। तो ये इतनी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं उसमें कि जिसकी वजह से अक्सर ये केसेस पेंडिंग होते हैं। दैट्स वाई मैं ये चाहती हूँ कि हम सब प्रिकॉशनरी रहे, हमेशा हम प्रिकॉशन ले जितना ज्यादा हो सके, हमें कोई कंप्लेंट फाइल करने के स्टेज तक ना पहुंचना पड़े। नाउ आई विल बी टेलिंग यू, इवन इफ आप सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद, जो कि मैंने एग्जांपल्स आपको दिए कि हम कभी कभी बहुत पजल्ड होते हैं, बहुत कहीं फंसे होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पे हमें क्विक डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, या फिर जहां पे हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में हम कभी हैं, और ऐसे में हम कभी कभी कोई गलती कर जाते हैं और हमारे साथ ये फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो जब हम अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए, हम अगर कभी विक्टिम बन गए, तो हमें क्या करना है?
फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज 1930 पे आप कॉल कर दो। ये आपको मतलब लिटरली विद इन सेकेंड्स करना है, लिटरली विद इन सेकेंड्स करना है। मैं इसका रीजन भी बताती हूँ क्यों कह रही हूँ मैं ये चीज। जब आप 1930 पे कॉल करते हो ना, तो जो इनकी टीम होती है, साइबर हेल्पलाइन की टीम होती है, so basically we need to handle the situation with calmness, not be panicked. Yes, very calmly you have to. अगर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आप रिपीटेडली करते रहो जितनी बार भी करना है, बिकॉज मैं आपको रीजन भी दे रही हूँ। क्योंकि क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपके पैसे बचा देगा मैम। जो 1930 पे आप जब कॉल करते हो तो इनकी जो टीम होती है ना, इनके साथ सभी बैंक्स के, लिटरली सभी बैंक्स के ना एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं। तो जैसे ही ये आपका कॉल रिसीव करेंगे और इनके पास अगर आपकी एक बार इंफॉर्मेशन पहुंच गई ना कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, फटाफट से आप सब कुछ बताओगे। तो जैसे इनके पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि क्या हुआ है, कौन से अकाउंट से पैसा गया है, कौन से अकाउंट में पैसा गया है, द मोमेंट दे नो दिस, दे विल इन्फॉर्म द बैंक एग्जीक्यूटिव्स। बैंक एग्जीक्यूटिव्स इमीडिएटली उस ट्रांजैक्शन को फ्रीज करेंगे, वो उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने लग जाते हैं। क्या होता है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट यू हैव टू act very quickly, very quickly. First golden hour is very important. जो ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं ना, इन्होंने पूरा ना सिस्टम सेट कर रखा होता है। ये आपसे पैसे आ गए, आपसे पैसे आते के साथ एक अकाउंट में जाएंगे, इंस्टेंटली वो दूसरे बंदे को उन्होंने बता रखा होता है पैसे आते ही तुझे यहाँ भेज देने। वो आते हैं पैसे, वो कहीं और भेज देता है। और वो क्या करते हैं, वो एक साथ पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते, कभी भी टुकड़ों में बढ़ जाता है ये। मान लो आपके पास से 4-5 लाख रुपए गए, 5 लाख रुपए गए, 1 लाख कहीं और जाएगा, 1 लाख किसी और अकाउंट में जाएगा, 1 लाख किसी और अकाउंट में जाएगा, 1 लाख किसी और अकाउंट में जाएगा, ऐसे जाएगा पैसा। फिर वो 1 लाख भी टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 1 लाख में से कभी 50-50 के टुकड़े बढ़ जाएंगे या 25-25 हजार के टुकड़े बढ़ जाएंगे, ऐसे होता है। इस तरीके से इनका ये पैसा फैलता है। तो आप बताओ आपका पूरा अमाउंट कैसे ट्रेस होगा? आपका पूरा अमाउंट ट्रैक करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पैसा चला गया। तो इस वजह से ये इतनी जल्दी इन्होंने ऐसे पूरा पैसा गायब करने का, लिटरली गायब करने का ना, इन्होंने पूरा सिस्टम बैठा रखा होता है। एंड दे ऑल्सो कन्वर्ट इन बिटकॉइंस। यस, बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं मैम, कैश विड्रॉ कर लेते हैं, बहुत चीजें हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। ये लोग पैसा लिटरली सेकेंड्स के अंदर गायब कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले 1930 पे रिपीटेडली कॉल करना है। मैं कहूंगी जब तक आप उनसे बात नहीं हो जाती करते रहो, बिकॉज वो है सबसे पहले जो उस पैसे के ना ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर दे। वहीं पे आपका पैसा जो है ना वो बच जाएगा, क्योंकि जितना वो रोक पाएंगे। मान लो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया, लेकिन कम से कम आपके 5 लाख में से 2 लाख या 3 लाख तो बच जाएंगे। उतना भी बच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एक रुपया तक नहीं मिल पाता वापस, 1 रुपया तक नहीं। सो सबसे पहले 1930 पे कॉल करो, ताकि आज जितना हो सके आपका पैसा बच जाए। उसके बाद आप सबसे पहली चीज, मतलब ये है आपका, मैं आपको ऐसी सीक्वेंस में बता रही हूँ कि लिटरली यही सीक्वेंस फॉलो करो टू। Ma'am? यस Ma'am, can you please wrap it up a little faster? We are running out of. श्योर When it comes to questions, we can actually have an interactive session at the end. Okay, sure. Sorry, I'm sorry. Actually, I will just keep it quick. So, I'm telling you in exact sequence, जिससे कि आप सबसे ज्यादा अपने सारे assets को बचा सकते हो। Next step will be कि आप जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं, स्क्रीनशॉट्स, ईमेल आईडी, ईमेल्स या कॉल रिकॉर्डिंग्स, जो भी आपके पास है उसको प्रिजर्व कर लो, वो कहीं ना जाए। क्योंकि डिजिटल एविडेंसेस सबसे जल्दी आपके डिसअपियर हो जाते हैं, लाइक विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई वो गायब हो जाएंगे। इसलिए डिजिटल एविडेंसेस आप अपनी तरफ से जितने प्रिजर्व कर सको आप बचा लो, बिकॉज दे विल इरेज एवरी ट्रेस। जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो सारे ट्रेसेस गायब कर। तो आपके पास उनके स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स जो आपने रिसीव करी, मैसेजेस जो आपने रिसीव करे, जो अकाउंट आपने जो ट्रांजैक्शन करी, ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है आपके पास, ट्रांजैक्शन प्रूफ है, सब कुछ, लिटरली ईच एंड एवरी छोटी से छोटी चीज भी आप उसमें अपने पास डिजिटल एविडेंसेस को सेव करके रखना। इवन फॉर बैकअप आप अपने किसी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट को शेयर भी कर दो,
फटाफट उसी वक्त शेयर कर एंड लॉन्च अ कंप्लेंट at the National Cyber Crime Reporting Portal, जो जिससे कि आप वहां पे फटाफट आप अपनी कंप्लेंट डाल दो. जब आप कंप्लेंट डाल दोगे तो दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट ट्रांजैक्शन, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग दैट ट्रांजैक्शन. आपके जो डिजिटल एविडेंसेस हैं ये भी आपकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे. cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट है विच आई कैन टेल, जहां पे आप सबसे पहले जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दो. सो दीज आर द मेजर स्टेप्स दैट यू मस्ट टेक जैसे ही आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आप ऐसा कोई फ्रॉड फेस करते हो. सो लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट हमारे को कभी कभी डर लगता है दैट जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है दैट इज बिकमिंग डेंजरस, बट आई वुड से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट डेंजरस नहीं है, बट हाँ लैक ऑफ अवेयरनेस डेफिनेटली है. इफ वी आर अवेयर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स क्या लेने हैं, देन वी कैन सेव आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली मेंबर्स. थैंक यू एवरीवन फॉर allowing me to teach you and discuss with you how we can prevent ourselves and our families from these cyber frauds. Thank you so much, ma'am, for such an insightful and engaging session. Your practical guidance has given us valuable knowledge that we can apply in our everyday life. We will now move into interactive Q&A session. This is your opportunity to ask questions and interact with the speaker. If you have any questions, please raise your hand or write in the chat. Let's start with the very first question. Yes, Vijeta ma'am, please ask your question. Ma'am, actually, once it happened was like I was to transfer the money to my sister-in-law's account. Okay. So what happened was means like लास्ट के 2 डिजिट के उससे तो वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. देन आई जस्ट गेव अ कॉल ऑन आईसीआईसीआई बैंक से जैसे मैंने ट्रांसफर किया था, तो आई कॉल्ड देम ऑल्सो, और मेरे बैंक अकाउंट बैंक में भी मैंने जाके और उनको भी मैंने बोला था. एंड लाइक उससे मेरे को जो है एग्जीक्यूटिव से जब मैंने बात किया तो उन्होंने मेरे को उसके डिटेल्स दे दी, बट लाइक उसका अकाउंट नंबर भी मुझे वो तो रॉन्ग अकाउंट में चला गया था, तो वो अकाउंट नंबर तो मुझे पता चल गया, उसका नाम भी मुझे पता चल गया. बट लाइक आई रोट अ मेल टू माय बैंक के मतलब ये जो पैसे हैं इट वाज बाय मिस्टेकनली डन बिकॉज ऑफ 2 डिजिट. तो उन्होंने मैम आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं किया. एंड व्हेन आई वेंट टू देम तो उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि हम आपको नंबर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर जो भी जिसको भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो दे देगा तो हम आपको दे देंगे. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दे डिडंट गिव एनी आंसर टू मी. So you did not got back your money. आपको आपका पैसा नो मैम, नो नो, नॉट एट ऑल. ओके. सो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको इसमें बताती हूँ दैट समटाइम्स ना, बिकॉज इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं कि भाई झूठ बोल देते हैं दैट मेरे गलती से ट्रांसफर कर दिया तो मुझे पैसा वापस चाहिए. तो ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ दैट फ्रॉड यूजुअली जो बैंक्स हैं वो ये प्रिकॉशन लेते हैं कि वो इतनी इजीली इंफॉर्मेशन नहीं देते, राइट. बट यस यू ये है कि हाँ इफ दे कैन वेरीफाई, दे शुड हैव वेरीफाइड कि वो इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि भाई वो जेन्युइनली आपने पैसे ट्रांसफर करे हैं एंड आपको अपनी सिस्टर को भेजने थे, एंड दैट शुड बी डन. बट इफ नॉट, then what you could have done is you can have asked them कि in this case what I can do, or you can
ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, अगर उनकी डिटेल्स कहीं से मिल सके आपको, या जिसके पास पैसे गए हैं ना, आप उनको ही एक पेमेंट के साथ एक नोट जाता है, आप उनको वो नोट दे सकते हो दैट दिस हैज बीन। Ma'am, that also I did. That also I did. Like after that, I transferred him. मतलब 5,000 तो ऐसे चला गया था. But after that, I transferred him 1 rupee. And in the remarks, I wrote that 5,000 rupees transaction was done by mistake. ओके, But I got nothing from there. okay, now that comes a case of greed kind of, because that person should have either transferred it back to you. He might not have done, maybe thinking that it was a fraud transaction. This thing happens, such problems happen. Now there are things like, if in cases में ना थोड़ा सा complication इसलिए होता है, either you can take a legal action against them कि they have not returned my money. You can make the bank a party as well, that I tried to contact the bank but they did not take any action. But I would say that this is some like बिल्कुल last resort वाला point है कि आप किसी legal action पे जाओ, क्योंकि क्या है, गलती से हुआ है, जो बैंक है वो भी किसी इल इंटेंशन से कुछ नहीं कर रहा, जो सामने वाला पर्सन है वो भी प्रोबेबली किसी इल इंटेंशन से आपके पैसे नहीं रख रहा, बिकॉज आई हैव आल्सो फेस सच थिंग्स दैट कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पास सडनली कहीं से एक कुछ अमाउंट 3,100 समथिंग एक अमाउंट आया मेरे पास, वो मेरे पास आया, लेकिन मेरे अकाउंट स्टेटमेंट में वो लिखा आया फ्रॉम Amazon. Now there was nothing I ordered, nothing I returned from anywhere. तो वो कहाँ से आया पैसे, तो I also suspected कि भाई कोई फ्रॉड अमाउंट आया है ये मेरे पास Amazon की तरफ से, कि वो उनकी तरफ से आया, एंड दैट माइट बी कि भाई वो दे विल क्लेम कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन हैपेंड. तो ये बिकॉज हम ये वाला प्रिकॉशन लेते हैं तो दिस थिंग हैपेंस. हाँ, आप बैंक से ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, अलाउ देम टू वेरीफाई ईच एंड एवरी डिटेल कि सी ये मेरी सिस्टर इन लॉ का अकाउंट नंबर था, ये वो अकाउंट नंबर है जिसपे मैंने भेज दिया है. आप वेरीफाई करवा लो, डिटेल्स वेरीफाई करवा लो, मेरा बैकग्राउंड चेक करवा लो, आप सब कुछ जो आप बैंक को से बोलो, आप जो बैकग्राउंड चेक करना चाहते हो वो कर लो, एंड वेरीफाई एट योर सेटिस्फेक्शन कि मैंने जेन्युइन ट्रांजैक्शन किया है, मेरी सिस्टर इन लॉ का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, एंड आप इसमें आप प्लीज ये पैसे मेरे इधर, भले ही आप उस पर्सन से के अकाउंट से मेरी सिस्टर इन लॉ के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करवा दो, आप मुझे वापस मत दो, आप डायरेक्टली मेरे सिस्टर इन लॉ के अकाउंट में पैसे पहुंचवा दो. यू कैन ट्राई टू आस्क द बैंक टू असिस्ट यू इन दैट वे, बिकॉज मैं ये कहूंगी, बिकॉज इसमें कोई हार्श एक्शन लेना ना एक लास्ट रिजॉर्ट रहता है, बिकॉज मैम ये एक थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम भी डरते हैं कि पता नहीं अचानक कहाँ से पैसे आ गए. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so May much. I ask one question, ma'am? Yes, sure, please. Ma'am, what if the scammers have your address? Like we have blocked them, they demanded for money, but they have your address and phone number, though you have blocked and did not transfer. So is there any harm in that case कि आपके phone number और आपका home address है उनके पास? बिल्कुल है मैम, फोन नंबर तो बहुत ज्यादा है, एंड होम एड्रेस, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर उनके पास आपका होम एड्रेस है, दे माइट बी ट्रैकिंग योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी. आप तो सोच के How देखो, to get rid of it? आप देखो, अब ये ना एक थोड़ी ये बहुत ही स्केरी सिचुएशन है. यू बेटर रिपोर्ट इट टू पुलिस, यू लॉज एन FIR, जो भी आपके पास डिटेल है बोलो, आप साइबर क्राइम ब्रांच जो है, साइबर पुलिस स्टेशन में जाके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, और किसी ने कहीं से मेरी फोन नंबर और एड्रेस भी ढूंढ के निकाल लिया है, एंड सच थिंग्स आर हैपनिंग टू मी. गो एंड टेल देम. फर्स्ट एक्शन इज आप इसके अगेंस्ट में एक्शन लो, बिकॉज फोन नंबर बिकॉज आपका फोन हैक हो सकता है, कहीं भी मिसयूज हो सकता है, कहीं भी वो लोग उस फोन नंबर को पहुंचा सकते हैं. फर्स्ट. सेकंड, एड्रेस तो मैं कहूंगी मैम बहुत बहुत बड़ा रिस्क है. अगर उनका ये पता है कि आप कहाँ रह रहे हो, जस्ट इमेजिन हाउ मच रिस्क यू आर एट फिजिकली. So online complaint if we register, हम रजिस्टर कर दें, क्योंकि अभी तक कुछ मिस हैपनिंग हुई नहीं है, अगर हम ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर दें.
बिल्कुल ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर दो साइबर क्राइम पे। आप इसके बारे में नेशनल साइबर पोर्टल जो मैंने आपको बताया उस पे आप जाके इसके बारे में 1930 पे कॉल करके। 1930 मैम ट्रांजैक्शन रोकने के लिए होता है। आप अच्छा। जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, आप उस पे जाके कंप्लेंट लॉन्च कर दो। आप चाहो तो ट्राई टू फाइंड यूजिंग गूगल कि आपके घर के नियरेस्ट साइबर क्राइम स्टेशन कौन सा है। आप वहां ओके। जाके डायरेक्टली उनको फिजिकली वहां पे आप जा सकते हो, जाके कॉन्टैक्ट देम, मीट देम एंड टेल देम व्हाट इज हैपनिंग विद यू। अगर कुछ नहीं भी हुआ है बट हाउ आपकी उन्होंने आपको कैसे बताया, आपको कैसे पता चला कि उनके पास आपका एड्रेस है, जो भी आपकी मतलब वॉट एवर हैज हैपेंड टिल नाउ, गो एंड टेल देम। एटलीस्ट एक प्रिकॉशनरी एक्शन जरूर लो, बिकॉज ठीक है, हैविंग द होम एड्रेस इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Someone named Namita has raised their hands. Please ask your So, question. ma'am. Yeah, hi ma'am. Thank you for the insightful session. And matlab, I have learned a lesson, ma'am. Even the parcels that do comes to our places, they have all the details, our address and all. So it happened with me twice, like from Amazon. I didn't order it even, but it came in my absence, and my husband accepted it, and he paid the money. And because I'm having one more number that is for my personal use, so he said कि OTP is coming on that number, though it was not being connected from my Paytm. But then he said, अच्छा अच्छा इस पे Paytm नहीं है तो आप कैश ऑन डिलीवरी ही कर दीजिए. And he took the money. It happened twice. For that also I have complained, but now I ensure whichever so parcel comes to my house, I first try to clear all the Yes. details and then I smash the Yes, box. exactly. Because So that's we what learn I from our told the person experience who and asked the question earlier yes. कि आपका एड्रेस होना तो मैम मैं तो कहूंगी एड्रेस तो बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। बिकॉज वो इंसान कहीं भी बैठा है, ही कैन डू एनीथिंग। वो आपके एब्सेंस में आपके घर में घुस जाएगा, ही कैन ट्राई टू किडनैप यू, ही कैन ट्राई वॉट एवर। बिकॉज उन्हें पता है आप कहाँ रह रहे हो। वो आपके पीछे Yeah. कोई आदमी लगा दे, फॉर एग्जाम्पल Yes, आपके पीछे किसी को भेज दे जो पूरा ट्रैक कर रहे हैं कब कहाँ जा रहे हो, कब किसको कहाँ पेमेंट दे रहे हो। I ये तो agree, आपकी ma'am. पूरा पूरा लाइफ साइकिल ही पता लग जाएगा उनको। Yeah, yeah. For that reason only, ma'am, now I try to avoid this and I wanted यस to share with everyone. यस, Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Anyone else? Please raise your hands or ask in the chat room. I suppose no further questions from anyone. With this, we come to the end of today's session. I'd like to express a sincere gratitude to Advocate Khushi Sharma ma'am for sharing such valuable insights on financial cybersecurity and online fraud prevention. Thank you, ma'am, for your time and for making this session interactive. I would also like to thank our participants for joining us and being an active part of today's session, as well as our organizing team for making this event possible. Before we conclude, we invite you to join the Volunteer for Your Community campaign 2026 by Project Cyber Shield to become changemaker and conduct cyber awareness sessions. To register, simply scan the QR code on your screen. We request all the participants to scan the QR code displayed on your screen or use the link shared in the chat to complete the post-assessment form. Filling out this form is mandatory before leaving the session. Thank you, everyone. Have a great night. We look forward to see you in next session. Thank you so much, ma'am. Thank you, the Thank you participants. so much for having me here. I'm really glad. Thank you so much.
We will wrap up the session in 5 minutes.